Today we will talk about the DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? This DNA fingerprinting, it is also known as DNA profiling, or this is also called as DNA typing. अब DNA fingerprinting जो है, we'll discuss it in 4 lectures. We'll talk about first what is the definition, what is the introduction of the DNA fingerprinting. उसके बाद what is the principle of DNA fingerprinting, और फिर applications of DNA fingerprinting or procedure of DNA fingerprinting. So what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is simply a technique which determines the base sequence of our DNA, which are unique to each individual. DNA fingerprinting एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम DNA जो है उसमें पर्टिकुलर DNA हम लेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें बेस सीक्वेंस किस किस्म की है, उसको हम DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं. और हर किसी, अगर हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स है तो उनमें डिफरेंसेस होंगी बिकॉज ऑफ द बेस सीक्वेंस. एक पर्सन की बेस सीक्वेंस डिफरेंट होगी फ्रॉम द अदर बेस सीक्वेंस. तो वी डिटरमाइन दिस टाइप ऑफ बेस सीक्वेंस इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सिंपली, ये वो टेक्निक है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेस सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए जो हर किसी इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है. वी हैव फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज वन इंडिविजुअल, अनदर इंडिविजुअल, हम इसके डीएनए में बेस सीक्वेंस देखेंगे, इसके डीएनए में बेस सीक्वेंस देखेंगे, तो इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं. और ऑब्वियसली इसमें जो डीएनए बेस सीक्वेंस होगी और इसमें जो डीएनए बेस सीक्वेंस दैट वुड बी डिफरेंट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज़ अ टेक्निक जिसके हम डिटरमाइन करते हैं बेस सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए जो एक यूनिक होती है हर किसी इंडिविजुअल में. So the technique of determining the base sequence of a DNA, and this base sequence of a DNA, it is different for different individuals. We have 2 types. So we have heard about the second fingerprinting as well as DNA fingerprinting. अब ये second fingerprinting जो है ये एक दूसरा concept है. This second fingerprinting, it was discovered by Henry Ford. और DNA fingerprinting जो है, the father of DNA fingerprinting is Alec Jeffrey. It was discovered by Alec Jeffrey, discovered the DNA fingerprinting. और DNA fingerprinting in India DNA fingerprinting, the father of Indian DNA fingerprinting is Lalji Singh. So this is Lalji Singh, father of Indian DNA fingerprinting. This second fingerprinting, it was discovered by Henry Ford. But this DNA fingerprinting, it is more reliable as compared to that of the DNA fingerprinting is more reliable as compared to that of the second fingerprinting, because this second fingerprinting, it can be altered by means of the, इसको हम alter कर सकते हैं by means of plastic surgery. But regarding this DNA fingerprinting, we don't have any method कि जिससे हम alter कर सकते हैं DNA fingerprint को, क्योंकि DNA fingerprint जो है वो हर किसी, अगर हम एक इंडिविजुअल लेंगे उसके हर किसी सेल में similar type of DNA fingerprint हमें हासिल होगा. So there is no method to alter the DNA fingerprinting, whereas second fingerprint can be altered through plastic surgery. और दोनों DNA fingerprinting as well as second fingerprinting, these are used to distinguish between the individuals, except for the monozygotic twins. जो monozygotic जो individuals same zygote से arise हो जाएंगे, उनको हम differentiate या distinguish नहीं कर सकते हैं by means of DNA fingerprinting से या by means of second fingerprinting. So exception जो है monozygotic twins, monozygotic twins. तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे बाय मीन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. और ऑब्वियसली दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज़ मोर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेकंड फिंगरप्रिंटिंग. देन दिस वाज रिगार्डिंग द what is the definition of the DNA fingerprinting and how it is different from the second fingerprinting.
अब skin fingerprinting, for example, ये this is the skin. This skin is also the pattern of the skin. It is also different in different individuals. So it can also be used to distinguish between the individuals, like the DNA fingerprinting. अब regarding the principle of DNA fingerprinting, अगर हम बात करेंगे how this what is the principle of the DNA fingerprinting, जो it has been found that in case of individuals, in case of humans, अगर हम humans की बात करेंगे तो इनमें जो DNA होता है that is 99.9% जो है वो सिमिलर होता है DNA among the individuals, और सिर्फ डिफरेंस है, there is a difference of only 0.1%. 0.1% DNA डिफरेंट होते हैं from between the individuals or among the individuals. So we can say that there is the similarity of base sequence and there is a dissimilarity of base sequence. A similarity जो है that is 99.9% जो base sequence of DNA वो similar होते हैं, और सिर्फ 0.1% जो है base sequence of DNA वो different होते हैं among the individuals. So ये 0.1% जो है differences among the base sequence, इसको it is very significant, और इसको scientists use करते हैं to distinguish one individual from the another individual. अगर हम बात करेंगे ह्यूमन्स में, उनमें ह्यूमन्स में वहाँ पर DNA जो होता है that is same 99.9% सेम होता है, that is base sequence सेम होती है, और डिफरेंसेस जो है that is only 0.1% एक DNA डिफरेंट होता है from the other DNA. अब we know that, और यही 0.1% जो है डिफरेंट जो होते हैं बेस सीक्वेंस में, these are significant to distinguish one individual from the another individual. इसी के जरिए हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन डिफरेंसेस की वजह से, जो 0.1% डिफरेंसेस होते हैं बेस सीक्वेंस में. अब वी नो दैट DNA जो होता है ह्यूमन्स में, उनमें दो टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. दैट मीन्स वी हैव DNA एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स में जंक DNA होता है. दैट मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन्स DNA में दो सेगमेंट्स होते हैं, एक तो है कोडिंग दो सीक्वेंसेस होते हैं, एक तो है कोडिंग सीक्वेंसेस और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. तो एक्सॉन जो है वो कोड करते हैं, these are the coding sequences, they code for the proteins, whereas इंट्रॉन जो है they do not code for the proteins. अब इनमें प्रेजेंट होता है जंक DNA. लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज इस इंट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, वो है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. वो क्या होते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स? ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, दीज आर रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस. ये रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं, बेसिस जो रिपीट हो जाते हैं. और ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ये कहाँ पर होते हैं? ये इंट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट आर VNTR वेरिएबल, और ये VNTR कहाँ पर होते हैं? इंट्रॉन्स में होते हैं. व्हाट आर VNTR जो है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ये रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं, और ये रिपीट सीक्वेंस ऑफ 10 to 60 बेस पेयर्स होते हैं, और these आर फ्लैंक्ड, और उनके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स. दे आर फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड्स बाय रेस्ट्रिक्शन साइट्स. अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है AATCG, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है. अब यही रिपीट हो जाएगी AATCG. तो दैट मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है AATCG, ये भी है AATCG. दीज आर कॉल्ड, जब इस तरह की सीक्वेंस होगी, रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होगी, तो हम उसको वेरिएबल नंबर टैंडम बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. तो व्हाट आर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स? आर सिंपली द रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस. और उनके फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट है, उसके एंड्स पर साइड्स पर प्रेजेंट होंगे फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स. और इनमें ये सीक्वेंस पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है AATCG ये रिपीट हो गई है 1 2 3 टाइम्स, ये रिपीट हो गई. जब इस तरह की सीक्वेंस हमें मिलेगी तो हम इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. और ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ये सीक्वेंसेस कहाँ पर होते हैं? ये इंट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट जो है दे शो पॉलीमॉर्फिज्म among the individuals. That means अगर फॉर एग्जांपल
what it means, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक फॉर्म है AATCG, दूसरे में दूसरी, फॉर एग्जांपल वहाँ पर ATTCG होगी ये फॉर्म. सो उसको हम बोलते हैं कि इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में. और दूसरी बात है कि लेंथ एंड नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स वो भी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इसलिए हम बोलते हैं कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स. और यही वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो है ये इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्कर्स. इनको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए जेनेटिक मार्कर्स. दीज आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्कर्स टू डिस्टिंग्विश अमंग द इंडिविजुअल्स. क्योंकि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो है वो उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. देयरफॉर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिक मार्कर्स फॉर टू डिस्टिंग्विश अमंग द इंडिविजुअल्स. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंडिविजुअल्स, इफ आई गॉट वी हैव टू इंडिविजुअल्स, दिस इज वन इंडिविजुअल, दिस अनदर इंडिविजुअल. तो हम इनका जीनोम लेंगे, we'll take their genome, haploid set of chromosomes लेंगे और फिर हम उनको एक्सपोज करेंगे टू द रेस्ट्रिक्शन, द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. यहाँ पर हमने इसका डीएनए लिया, यहाँ पर हमने इसका डीएनए लिया और फिर हम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो जो इसमें हमने डाले, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने इस्तेमाल किए टू कट द डीएनए. तो यहाँ पर व्हाट वी विल फाइंड कि यहाँ पर जो हमें नंबर एंड लेंथ ऑफ वेरिएबल टेंडम रिपीट्स मिलेंगे, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम हेयर, जो यहाँ पर हमें वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स मिलेंगे. तो फिर हम उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. रेस्ट्रिक्शन विल टेक जीनोम्स ऑफ 2 persons और देन हम यूज करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. सो दिस इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, सो दिस इज RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज करेंगे. तो द लेंथ एंड नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो है वो डिफरेंट होगा इन 2 इंडिविजुअल्स. तो हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. रेस्ट्रिक्शन क्यों हम बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किए हैं और हमें फिर ये फ्रैगमेंट्स में हासिल होता है, इसलिए बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. अब ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, डिफरेंट इनमें लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ होगी और डिफरेंस इन नंबर होगा, इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. फिर इन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ इनको हम फिर रेस्ट्रिक्शन RFLPs को हम फिर सेपरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दे आर देन obtained on southern blot. This constitutes the DNA fingerprint of a person और इससे हमें DNA fingerprint of a person हासिल होता है. So this was regarding the principle of the DNA fingerprinting. One thing इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या होता है और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. वेरिएबल टेंडम रिपीट्स ये सिंपली रिपीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं जो इंट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो उनकी लेंथ और उनका नंबर वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसलिए हम बोलते हैं इनको वेरिएबल नंबर. टेंडम क्यों बोलते हैं? टेंडम दैट मीन्स दे आर वन आफ्टर द अनदर. टेंडम दैट मीन्स ये एक सीक्वेंस है, उसके बाद यही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम. टेंडम मीन्स वन आफ्टर द अनदर. रिपीट, टेंडम रिपीट इसलिए बोल ये बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, कभी कभार 4, 5, 6, यहाँ पर 3 टाइम्स ये रिपीट हो गए, किसी दूसरे इंडिविजुअल में 5 टाइम्स ये रिपीट्स इंडिविजुअल ये रिपीट हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट फिर हम 2 इंडिविजुअल्स लेते हैं, देन वी यूज द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो उससे हमें वेरिएबल टेंडम रिपीट्स मिलते हैं, लेकिन उनकी लेंथ और उनका नंबर वो डिफरेंट होता है. और अल्टीमेटली हम फिर जब हमने वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स को एक्सपोज किया टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हमें जो फ्रैगमेंट्स हासिल हो जाएंगे उन्हीं को हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. फिर इन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को सेपरेट किया जाता है बाय मींस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दिस आर ऑब्टेन्ड ऑन साउथर्न प्लॉट और दिस इज कॉल्ड एज दिस कॉन्स्टिट्यूट डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ अ पर्सन.
So this was all about the DNA fingerprinting. So remember that what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting, it is a technique to determine the base sequence of a DNA which is different for each individual. और ये DNA fingerprinting technique, the father of DNA fingerprinting is Alec Jeffrey, or this in India the DNA fingerprinting is discovered by Lal Ji Singh. So what is the principle of DNA fingerprinting? The basic principle of DNA fingerprinting is the presence of variable number tandem repeats. ये variable number tandem repeats इंट्रॉन्स में present होते हैं. और फिर अगर हम दो individuals लेंगे, उनका जो DNA जो है उसको हम expose करेंगे to the restriction endonucleases को, तो then we'll get the difference in the length and number of variable number tandem repeats, जिनको हम ultimately बोलते हैं restriction fragment length polymorphism. इन restriction fragment length polymorphism को हम फिर separate करते हैं by means of gel electrophoresis और obtain करते हैं on a South plot. This is what is called as DNA fingerprint of a person. So this was all about the DNA fingerprinting. Thanks.